Hello everyone. Now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is NUPA. The particular topic is related to government agencies and the unit number 4 of the MEd semester 1 paper Education Studies paper number 3. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ MEd सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पेपर नंबर 3 एजुकेशन स्टडीज के यूनिट 4 में सरकार की एजेंसियां के अंतर्गत न्यूपा के बारे में, यानी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि प्लानिंग यानी योजना और खासकर प्रशासनीय व्यवस्था तय करती हैं या कैसे निर्धारित करती हैं, इसके बारे में। जब कहीं भी न्यूपा की अगर बात करें, दैट इज नेशनल, N फॉर नेशनल, U फॉर यूनिवर्सिटी, E फॉर एजुकेशनल एंड P फॉर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का तात्पर्य है एक ऐसा ऑटोनोमस बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट मीन्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द एजुकेशनल, बेसिकली डिपेंड्स ऑन दी मोड ऑफ रिसर्च, यानी जो रिसर्च पर डिपेंड रहते हैं उसके आधार पर कि उसकी गुणवत्ता सही कैसे की जाए। एंड ऑल्सो एम्फेसाइज द मोड ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी जो समन्वय के जो तरीके होते हैं उस पर भी जोर देती है। कह सकते हैं कि यह शुरू में साउथ एशिया स्तर पर योजना काम करती थी न्यूपा। बाद में 1979 में इसे न्यूपा किया गया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से किया गया, और अगस्त 2006 में इसे न्यूपा नाम दिया गया, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन जो कि राज्य स्तर और यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं उन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन और शोध और गुणवत्ता, डिस्कशन, डिबेट, इन सभी चीज़ों पर, जिससे कि शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर बढ़ सके, उस पर मुख्य रूप से ध्यान देती है। तो मैं अब आपको इन सभी चीज़ों को और विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now, again welcome to video lecture class MEd semester 1 paper 3 education studies. Now, point number 10, National University of Educational Planning and Administration, NUPA. In the earlier video related to government agencies of education, so many autonomous body, and in the earlier video I have also discussed. Today I am going to talk about the topic National University of Educational Planning and Administration. First I will introduce the particular topic in English and after that in Hindi. NUPA is the national apex institution in the field of educational planning and administration. In the earlier, that means in 1962, their work related to Asian Religion Center for Educational Planners, but in 1979 it was again renamed as NIPA, NIEPA, but in 2006, August 2006, it was named as NUPA. NUPA is an autonomous body established by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. Next point, it is a prime organization dealing with capacity building and research in planning and management of education, not only in India but also in the South Asia. Next point, the Government of India has empowered it to award its own degree by way of conferring on it the status of deemed university in August 2006. Now, academic, that is role and involvement along with academic support provided by NUPA to center and state government are as follows. Number 1, organized training program. It organizes pre-service and in-service training program in the area of educational planning and administration. Second point, coordinating research. It promotes and coordinates research in various aspects of educational planning and administration and allied disciplines. Number 3, providing guidance
It provides academic and professional guidance to agencies and institutions regarding planning and administration. Number 4, offering PhD and MPhil program. It offers PhD course and award degrees in educational planning, finance, comparative education, school education and higher education. Number 5, act as a clearing house. It acts as clearing house of ideas and information on research, training and extension in educational planning. Number 6, publishing journals and periodicals. It prepares, prints and publishes papers, periodicals and books, especially brings out a journal on educational planning and administration. Number 7, organizing workshops, training and seminar. It organizes meetings, workshops and seminars for educational. Number 8, consultancy services. It provides consultancy services in the sphere of education, planning and administration for center as well as state government universities. Number 9, organizing refresher courses for teacher education. NUPA organizes orientation and training programs and refresher courses for teacher, educators and for college administrations. Number 10, discussion and issues. It initiates and encourages discussion on educational issues of national significance. Number 11, contacts and collaboration. It establishes contact and advance academic collaboration with inter-institutions in India and abroad. Next, number 12, offering a scholarship and academic awards. It offers fellowship, scholarships and awards. Number 13, conferring honorary fellowship, that means honorarium. Fellowship, it confers honorary fellowships on eminent educationists for continuation in the field of educational planning and administration. Number 14, disseminating information. It disseminates information related to experience and new advances in the area of educational planning and administrations. Number 15, symbolic link. It builds symbolic link between the imparting and generation of knowledge. It also strengthens basic and applied research in a sphere of educational planning and administrations. Now, all matter, अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट करूं। शैक्षणिक योजना और प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इसके पूर्व के वीडियो में मैं जो सरकार की एजेंसियां हैं उसके अंतर्गत 9 एजेंसियों की चर्चा की थी। ये 10 नंबर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यानी न्यूपा के बारे में। सर्वप्रथम मैं न्यूपा के बारे में थोड़ा परिचय दे दूँ, उसके बाद उसकी भूमिका और भागीदारी के बारे में बात करूँगा। तो न्यूपा, एक्चुअल में न्यूपा का आधार क्या है, थोड़ा उसके बारे में क्लियर किया जाए। न्यूपा शैक्षणिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्थान है। 1962 में साउथ एशिया के अंतर्गत इसकी कार्यप्रणाली थी, लेकिन 1979 में यानी 1979 में इसे नीपा NIEPA का नामांकन किया गया था, नाम दिया गया था। बट पुनः अगस्त 2006 में इसे न्यूपा यानी NUEPA नाम दिया गया। न्यूपा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। नेक्स्ट पॉइंट, यह क्षमता निर्माण और अनुसंधान में काम करने वाला एक प्रमुख संगठन है। यह भारत में न केवल दक्षिण एशिया के क्षेत्र में भी शिक्षा की योजना और प्रबंधन का भी कार्य करता है। इसे अपनी डिग्री देने का अधिकार है। यह डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम करता है और अगस्त 2006 से इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अब थोड़ी मैं स्पष्ट कर दूं कि केंद्र और राज्य सरकार को न्यूपा द्वारा प्रदान किए गए शैक्षणिक समर्थन के साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी है। नंबर 1, प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित करें। इसके अंतर्गत
यह पूर्व सेवा यानी सेवा पूर्व जो शिक्षक हैं और सेवाकालीन प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करता है और शैक्षणिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यक्रम का भी आयोजन करता है। नंबर 2, शोध का समन्वय करना। यह विभिन्न शैक्षणिक योजना और प्रशासन और संबंध विषयों से संबंधित विभिन्न विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देता है और समन्वय स्थापित करता है। नंबर 3, मार्गदर्शन प्रदान करना। यह योजना और प्रशासन के बारे में एजेंसियां या संस्थान जो कि शैक्षणिक और व्यावसायिक हैं उसे मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट नंबर 4, पीएचडी और एमफिल कार्यक्रम की को ध्यान देना या उसको जो है वह उसका आयोजन पर जोर देना या उस पर विशेष रूप से बल देना। या पीएचडी पाठ्यक्रम और पुरस्कार यानी जो अवार्ड है उसे प्रदान करता है, पीएचडी की जो डिग्री है उसे भी अवार्ड करता है। शैक्षिक योजना, वित्त, तुलनात्मक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और उस शिक्षा की डिग्री भी ये प्रदान करता है जिसमें कि पीएचडी भी इसके अंतर्गत आता है, यानी एमफिल भी है। नेक्स्ट, समाज शोधन यानी क्लियरिंग हाउस को बोलते हैं, समाज शोधन के रूप में कार्य करना। यह विचारों और सूचनाओं के लिए समाज शोधन के रूप में कार्य करता है क्योंकि शैक्षणिक योजना में अनुसंधान और प्रशिक्षण विस्तार का महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 6, प्रकाशन पत्रिकाओं और पत्रिकाओं पर विशेष रूप से काम करना। यह पत्रिकाओं को तैयार करता है, उसे छापता है और प्रकाशित भी करता है। साथ ही साथ समय समय पर किताबें, विशेष रूप से शैक्षणिक योजना से संबंधित जो हैं पत्रिकाएं उसे निकालता है और प्रबंधन भी उसका करता है। नंबर 7, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और सेमिनारों का आयोजन करना। यह बैठकों का आयोजन करता है जो कि सेमिनार या कार्यशाला के अंतर्गत होता है और केंद्र और राज्य सरकार के शैक्षणिक कर्मियों के लिए कार्यशाला का भी आयोजन करता है। नेक्स्ट, कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी सलाहकार सेवाओं। यह इस क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की सलाहकार सेवाओं को भी प्रदान करता है और जो कि राज्य सरकार या विश्वविद्यालय के शिक्षा योजनाओं से संबंधित होता है। नंबर 9, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स पाठ्यक्रम का भी आयोजन करता है। शिक्षक एवं शिक्षक जो से जुड़े हुए जो शिक्षक होते हैं उन सभी के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन जिसमें कि अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम, साथ ही साथ पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से उन महाविद्यालय प्रशासन के संबंध में चर्चा की जाती है। नंबर 10, चर्चा और मुद्दे। यह शिक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की भी चर्चा करता है। नंबर 11, संपर्क और सहयोग। यह विभिन्न प्रकार के जो एजेंसियां हैं उससे समय समय पर सहयोग भी करता है, संपर्क भी स्थापित करता है और शैक्षणिक विकास पर ध्यान देता है और भारत और विदेश से जुड़े हुए कुछ जो कार्यक्रम हैं उसका भी आयोजन करता है ये। नेक्स्ट, छात्रवृत्ति और शैक्षणिक जो पुरस्कार की पेशकश है या शैक्षणिक जो डिग्री है यह फेलोशिप प्रदान करता है और छात्रवृत्ति और पुरस्कार यानी डिग्री भी प्रदान करता है। नेक्स्ट, मानद फेलोशिप प्रदान करना जो कि 13 नंबर है। यह मानद फेलोशिप पर मुख्य रूप से प्रदान करता है जो कि शैक्षणिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में निरंतरता के लिए प्रख्यात जो शिक्षाविद हैं उन्हें प्रदान करता है। नंबर 14, सूचना का प्रसार। यह संबंधित सूचना का प्रसार करता है जो कि शैक्षणिक योजना और प्रशासन से संबंधित अनुभव और प्रगति के बारे में होता है। लास्ट में प्रतीकात्मक लिंक। यह निष्पक्ष और बीच के यानी खासकर प्रतीकात्मक लिंक यानी ज्ञान की पीढ़ी को आगे बढ़ाता है और क्षेत्र से जुड़ी हुई बुनियादी और अनुसंधान के क्षेत्र को मजबूत करता है जो कि शैक्षणिक योजना और प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से मैंने इसे स्पष्ट किया। Now, on the basis of above discussion, means related to the NUPA, it is most important and vital because NUPA play a significant role in the South Asian region, that means abroad the country, and also in the state and union territory of the India. जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि न्यूपा महत्वपूर्ण भूमिका अपने देश में उसके अलावा देश से बाहर भी जिसमें कि शिक्षा की गुणवत्ता शोध पर मुख्य रूप से ध्यान देता है। यह समय समय पर शिक्षकों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन, रिफ्रेशर कोर्स और उसके अलावा कैसे उनसे संपर्क स्थापित किया जाए, कैसे जो है शैक्षणिक दृष्टिकोण को विकसित किया जाए,
जिससे कि सेमिनार और कार्यक्रम यानी सेमिनार और कार्यशाला का भी आयोजन करता है. दैट मीन्स न्यूपा दैट मीन्स emphasizes the work that is related to the especially refresher course and also along with the administrative work of the school and colleges also. तो इस प्रकार से देखा कि न्यूपा के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया. अब अगले क्लास में मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूट के बारे में और उसकी भूमिका भागीदार मीन्स रोल एंड इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करूंगा. तो ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा. तो मैं अब तक वैसे हमारे छात्र जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इमीडिएट ये टॉपिक ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको प्राप्त होगा. तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.